Okay, first of all, before moving to any of the topic today, your operating system syllabus for mid one is chapter number 1, 2, and it is half of chapter number 3. Actually, your chapter number 3 and 4 are the chapters which are having some of the topics that are overlapping with each other. That's why we are continuing with chapter number 3 and 4 parallelly. So it is a for one chapter, you can consider it as a chapter number 3. Right? So whenever I say chapter number 3, it is 3 and 4 both. So I will also share the PPT for the same for Hello, only one, ma'am. both of the chapters. You can also check your syllabus for the same. We are having some topics in 3 and 4 that are same. Right? So which are different topics in third chapter, Ma'am, voice is not clear. fourth chapter, and the same PPT I will forward with you. Right? So in your just a minute. Guys, whosoever is learning or taking the session online, kindly adjust with the audio because I'm also here in the offline sessions. When I'm here and there with these guys, you may not able to listen me, or maybe there would be a voice problem with you. So kindly adjust. And if you are having any doubt in between the session, you can please ask, not writing in the comment section, and please speak in between so that I can able to learn that you are having any some issue. So mid one ka syllabus chapter number 1, 2 and chapter number 3 till we have discussed means till producer consumer problem with using sleep and wake up calls. Then after semaphores it is not included in your syllabus for mid one, right? So we were discussing producer consumer problem in the last session, and okay, let me share the PPT first. What we have discussed in the last session, we were discussing the producer consumer problem, right? What was the problem in producer consumer problem? What is the problem? What is your name? Ria. Yes, Ria. What is the problem in producer consumer? You don't remember. What do you remember in OS? OS? What do you remember in OS? Chapter 1 and 2. Any topic you can discuss? Kindly stand up first. Kindly stand up first. Yes. Which which one? Name them. Hmm. Hmm. In priority, we have two types. Yes. Which one? Yes. After that? Hmm. Can you discuss any algorithm? Can you discuss any of the algorithm? Whose time period? Which time period? Burst time.
But I'll consider you will not going to perform in mid one. You guys are on the same track. It means you will start from scratch from today. Okay. Okay, for your doubts, I will keep a session on Saturday as well, which I already planned because I know that you guys are on the same track or you guys on the now you are having nothing in your memory right now because there are already 6 subjects exam you have done. So for Saturday, I will keep one session, doubt session. It is not a mandatory session. If you want to attend, you can. If you are having any doubt, otherwise you cannot. It will be online. There is nothing to come and attend. आपका ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है आपका ऑनलाइन ही एक सेशन होगा आपको कोई भी डाउट हो टेस्ट पेपर से पहले यू कैन आस्क बट डोंट से दैट मैम let us revise chapter number 1 let us revise chapter number 2 come with the topics and doubts you are having genuinely right so going further in the last let me brief what we have discussing in the last sessions so that you will be on the thing that what we are going to do today. We have discussed producer consumer problem in the last session by using sleep and wake up calls. तो अब ये नया सा क्या है मतलब क्या आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल सेक्शन क्या था बेसिकली वी आर हैविंग अ क्रिटिकलिटी दैट सेक्शन व्हिच वी आर हैविंग shared variables or shared resources which at a time no two processes can access. We have to attain mutual exclusion in critical section problems. Like many of the examples I had given to you, कि आपकी दो ट्रेन हैं आपके पास एक ही पटरी है तो दोनों एक टाइम पे आ जाएंगे तो there would be a clash. That region is known as critical region, right? So when we are using shared resources and two of the processes are using that resource that is a shared in between, that section that resource is called critical section means एक टाइम पे दो प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते अगर करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी करेंगे और आपके प्रोसेस जो है वो सिंक में नहीं काम करेंगे right so that was the problem we were discussing in the last few sessions we have discussed many of the solutions or we can say that many of the approaches we have discussed like turn variable we have used one of the variable that is turn बिफोर टर्न वेरिएबल वी हैव यूज्ड लॉक वेरिएबल जो कि हम 0 और 1 जिसकी वैल्यू यूज कर रहे थे और जिस भी लेट मी शो यू हियर so before using turn we are using a lock variable lock variable की जगह हम क्या कर रहे थे 0 और 1 वैल्यू यूज करके आपका जो भी प्रोसेस है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पा रहा था राइट अगर आपकी लॉक वेरिएबल की वैल्यू 0 है इट मींस critical section is vacant. It can enter by changing the value of the lock and enter into the critical section. When it will exit from the critical section, it will change the value of the lock by 1 and exit from the critical section. There were some disadvantages. We can say that there are some violations we have seen in that solution. So we come up with the turn variable in which we are seeing the strict alteration we had given to the processes. If you remember about the turn variable solution, हमने एक वेरिएबल यूज किया जैसे कि हम टर्न बोल रहे थे if turn is 0 it means it is a turn of zero process if turn is 1 it is a turn of first process we have seen that by using turn variable solution which is also known as strict alteration by using turn variable solution we can attain mutual exclusion मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को अचीव तो कर पा रहा है लेकिन प्रोग्रेस नहीं था व्हाट वाज द प्रोग्रेस द क्राइटेरिया नंबर 2 that is the process which wants to access the critical section only that process can enter into it हमने क्या किया if you see the code here of turn variable yes so only the process which is having a turn 0 if the value of the turn variable is 0 process p1 can use the critical section if the value of the turn variable is 1 process p1 can use the critical section so it means only one process at a time can enter into the critical region other process cannot enter we have seen this and we have seen that mutual exclusion has been attained in this solution but the second criteria that is progress we are not able to achieve this criteria because once a process P0 will execute it will give turn to the P1.
and once the process P1 will execute it will give a turn to P0, and strictly alternating the turns they will execute. And this is not a progress, means अगर P1 को फिर से critical section चाहिए ही नहीं तो मैं फिर भी उसको turn दे रही हूँ. अगर P1 execute नहीं करेगा तो P0 की turn नहीं आएगी. So this is not a progress, which is also mandatory criteria we are having. So this is again not a correct solution. So we come up with the flag variable in which we are checking the second disadvantage, that is progress, either process is interested or not. So we had used a flag which will show the process is interested to use the critical section or not. So once the value of the flag is true, it means process is interested. When the value of the flag is false, means process is not interested. So once the process will interested to enter into the critical to use the critical section, only at that time we allow that process to enter, right? So in the flag variable, you have seen that we have checked the interest as well. So we had achieved mutual exclusion and progress both. मतलब एक ही टाइम पर एक ही प्रोसेस एंटर कर पा रहा था और एक ही टाइम पर ऐसा भी नहीं है कि दोनों में से मैं स्ट्रिक्टली अल्टर करके प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन दे रही हूँ. जिस भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है वो अपने फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है और एंटर कर जाता है, राइट. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस, दैट वाज डेडलॉक. The problem in the flag variable solution was the deadlock problem. What was the deadlock problem we have seen? मतलब एक टाइम पे अगर इसने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया और इसने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया और दोनों प्रिम्प्ट हो गए तो क्या होगा? अगर दोनों के फ्लैग ट्रू है तो कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं? फ्लैग ऑफ प्रोसेसेस. हम फ्लैग की वैल्यू को ही चेक कर रहे हैं कंडीशन में. तो दोनों की वैल्यू ट्रू है, इट मींस ट्रैप है, एंटर ही नहीं कर सकता. तो दोनों प्रोसेसेस एंटर नहीं कर पाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में. अगर दोनों अपना इंटरेस्ट सेम टाइम पे शो करते हैं और प्रिम्प्ट हो जाते हैं सिस्टम में, तो अगली बार आने पे कंडीशन क्या चेक होगी कि दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड है या नहीं. तो वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड था, तो हम क्या कर पाएंगे? क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगा. दैट इज कॉल्ड डेडलॉक, राइट. So we come up with a solution that is the correct solution in case of software approaches, that is Peterson solution. The Peterson solution में we have discussed, we are having two of the variables flag and turn. हम दोनों ही variables को use कर रहे थे. दोनों variables को use करके हम solution पर आए to achieve the critical section problem में. Mutual exclusion भी हमने achieve किया, हम टर्न भी चेक कर रहे थे और फ्लैग मतलब इंटरेस्ट भी चेक कर रहे थे. हमने ये भी चेक किया कि टर्न किसकी है और ये भी चेक किया कि जिसकी टर्न है वो इंटरेस्टेड भी है या नहीं. तो अगर वो दोनों करेक्ट होते हैं तो वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर पा रहा था. बट दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर ओनली टू प्रोसेसेस. दो प्रोसेसेस के लिए ये करेक्ट सॉल्यूशन वर्क करता है. दिस इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन. ऑल्सो इन योर क्वेश्चन पेपर दिस वुड बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द पीटरसन सॉल्यूशन with the help of code, so you have to explain this code in your explanation. ये नहीं सोचो कि सिर्फ समझाने के लिए. यहाँ पर ये कोड आपको क्वेश्चन पेपर में GTU एग्जाम में भी आएंगे, जितने भी आपको अभी तक किए जा रहे हैं. So we have discussed this Peterson solution with turn and flag variable. Okay, these were the software solution. Also we have discussed one of the hardware solution, that is TSL. तो हमने log variable solution में एक छोटा सा चेंज किया था कि हम log variable की वैल्यू को चेंज करके सेट करके प्रिंट हो रहे थे. That was the hardware solution we have discussed. That is also a correct solution. But ये क्या है? Costly solution है, इसलिए हम इसे opt नहीं करते, right? So these were the solutions we have discussed by using busy waiting methods. To avoid the busy waiting, we are having two IPC primitives that were sleep and wake up calls. Do you remember sleep and wake up calls? अभी तो कुछ याद नहीं है. तो टू अवॉइड द बिजी वेटिंग का क्या मतलब है कि आप एक ही ट्रैप में वेट करते रहते हो. दैट इज बिजी वेटिंग मेथड्स. अभी तक जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किया वो बिजी वेटिंग के थे, चाहे वो टर्न वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल है, लॉक वेरिएबल है, पीटरसन सॉल्यूशन. एवरी मेथड इज यूजिंग बिजी वेटिंग. Once a process into the critical section, another process is waiting on the trap, right? So we are having a solution or another method without busy waiting, that is these two system calls, sleep and wake up. Now what is these two primitives we are having? We are having a critical section. This critical section, for example, is using by P1 right now. P2 is waiting to access this critical section. तो जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट करता है वो स्लीप वेकअप कॉल जनरेट करता है.
और वो स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप जो कॉल है वो कौन सा प्रोसेस जनरेट करता है, जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए वेट कर रहा होता है, राइट। तो इट विल गो टू द स्लीप मोड। वो क्या करेगा, बार बार ट्रैप करके चेक नहीं करता रहेगा, जो कि सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा है उस पे। सीपीयू यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं दैट इज अ टोटली वेस्टेज। तो बार बार ट्रैप पे चेक नहीं करता रहेगा कंडीशन, वो स्लीप मोड में चला जाएगा स्लीप कॉल जनरेट करके। अब जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा था वो प्रोसेस क्या करता है, वेकअप कॉल जनरेट करता है जब वो क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट होता है। what it will do, it will generate a wake up call when it will exit from the critical section and wake up to the process which will go to the sleep mode. So these are the two primitives we are using instead of busy waiting, fine. So we have discussed one of the most common problem in our operating system, that is producer consumer, in which two processes are here, producer and consumer. Producer is here to produce the items, consumer is here to consume the items. They are using one of the shared resource, that is, what is common in between these two processes? What is common here? Here is the buffer, which is a common stack space they are using in between. Producer is producing an item and put into the buffer. Consumer is consuming an item from the buffer space only. So that buffer space is common in between producer and consumer. तो जहां पर हमारा shared आ जाए, common आ जाए, वहां पर क्या critical section है वो? We know that it is a critical section. So when it is a critical section, we have to avoid the processes to enter simultaneously into the critical section, otherwise there will be a no synchronization in between the processes. So we are trying to हमने ये कोड देखा कि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, आइटम्स को कंज्यूम कर रहा है. दिस इज ओनली कोड, दिस इज द प्रॉब्लम आई हैड रिटन. This code will represent the problem we are having in producer consumer. So this will say this is a consumer side code, what consumer is doing, what is the working of consumer. This side will say what is producer is doing, right? So when your producer is and consumer is consuming items and producing items, there are some problems we had seen. What is the problem? क्या प्रॉब्लम आती है, रियल लाइफ की बात करते हैं. कोई एक कॉमन स्टैक स्पेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप आइटम्स प्रोड्यूस भी कर रहे हो, उसी से आइटम कंज्यूम भी कर रहे हो. प्रॉब्लम क्या आ सकती है? एनीवन? यस, एनीवन कैन टेल मी? यस, दिमाग चला. हाँ जी. करेक्ट, करेक्ट. जब तक आइटम्स प्रोड्यूस नहीं हुई कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता. फर्स्ट फ्लो. नेक्स्ट वन, अदर देन दैट? अगर एक रिसोर्स यूज कर रहा है और प्रोड्यूसर को उसी रिसोर्स लेकर प्रोड्यूस करना हो तो वो भी नहीं. एक टाइम पे दोनों एक्सेस करें बफर को, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. In producer, for example, we are using the same space and at the same time producer is producing and consumer is consuming. अगर वो same stack को एक ही टाइम पर producer उससे produce भी कर रहा हो, consumer उससे consume भी कर रहा हो, there would be a clash, right? Other than that, producer ने कोई item produce नहीं किया, फिर सारी items empty हो चुकी है, तो consumer consume नहीं कर सकता. Other than that, producers के पास कोई space ही नहीं है, फिर भी वो produce किए जा रहा है, जितना भी data है वो loss हो जाएगा. These are the things which will happen. In reality, it will also happen. ना, you are having a stack space. आपके पास stack है जहाँ पे आप 10 ही items रख सकते हो. 11वीं item आप रखते जा रहे हो, आप कहाँ रखोगे? There is no space. Producer को कौन बताएगा कि कोई space नहीं है? वो तो एक process है ना system में. वो तो items produce किए जा रहा है. बाकी items कहाँ गई? अगली बार तो मिलेंगी नहीं. So same thing. Consumer is consuming the items, but the stack is empty. Who will tell the consumer that stack is empty, there is nothing to eat? तो वो जब तक यूज करने पाएगा तब तक जो उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की वो तो वेस्ट थी, राइट. दीज वर द प्रॉब्लम्स वी हैव फेस्ड इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. सो वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन दैट इज स्लीप एंड वेकअप. स्लीप और वेकअप के साथ हम इसका एक सोल्यूशन लेकर आते हैं. अब हम स्लीप और वेकअप कॉल यूज करते हैं.
तो हम प्रोड्यूसर एंड पर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब भी आपका बफर फुल हो जाएगा, प्रोड्यूसर कब तक आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है? इफ यू आर हैविंग अ बफर स्पेस ऑफ बफर स्टैक स्पेस ऑफ 1 to 4, तो इस केस में प्रोड्यूसर कितने आइटम्स प्रोड्यूस कर सकता है? ओनली 4। आफ्टर दैट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी आइटम। तो क्या वो करेगा प्रोड्यूसर, 4 आइटम्स प्रोड्यूस करने के बाद क्या, कहाँ चला जाएगा? स्लीप में, राइट। अब प्रोड्यूसर स्लीप मोड में चला गया है क्योंकि उसके पास, उसको पता है कोई और स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो लास्ट आइटम पे आता है वो स्लीप मोड में चला जाता है, मतलब लास्ट मतलब n नंबर ऑफ बफर, राइट। अब जैसे ही प्रोड्यूसर स्लीप मोड में चला गया, प्रोड्यूसर को कोई तो उठाए कि वो उठ के फिर से अपना काम शुरू करे। तो वो अपना काम कब शुरू करेगा? जब यहाँ पर स्पेस होगा। तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या करेगा, जब यहाँ पर वो कंज्यूम करेगा आइटम्स, उसने फर्स्ट आइटम कंज्यूम कर ली, सेकंड, थर्ड, तो जब वो लास्ट सेकंड आइटम कंज्यूम कर रहा होगा तब वो प्रोड्यूसर को वेकअप कर देगा ताकि वो फिर से आइटम्स कंज्यूम करना शुरू कर दे, राइट। कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को वेकअप करेगा जब वो लास्ट सेकंड आइटम कंज्यूम कर रहा होगा। एट दैट टाइम प्रोड्यूसर विल अगेन स्टार्ट इट वर्क, राइट। उसके बाद कंज्यूमर कब जाएगा स्लीप मोड में? कंज्यूमर स्लीप मोड में कब जाएगा? हाँ, यस, जब कुछ भी नहीं है स्टैक में, बफर एम्प्टी है, तब कंज्यूमर क्या करेगा? स्लीप मोड में रहेगा क्योंकि कंज्यूम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कंज्यूमर विल कैन गो टू द स्लीप मोड इफ द बफर इज एम्प्टी। और कंज्यूमर को वेकअप करने का काम किसका है? प्रोड्यूसर का। कब वेकअप करेगा? जब उसने एटलीस्ट एक आइटम भी प्रोड्यूस कर दी, तब वो कंज्यूमर क्या करेगा? वेकअप कर देगा, राइट। तो अब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ऐसे ही म्यूचुअली काम करेंगे और दोनों एक ही टाइम पर नहीं एक्सेस कर सकते क्रिटिकल सेक्शन को, वी नो दैट, राइट। So we have seen this solution. If you remember in the last session, I am just giving you brief here. We have seen that producer will produce the item, check, go to the sleep. If it is there are n items, it has been produced. अगर उसने सारी आइटम प्रोड्यूस कर ली होंगी तो वो स्लीप में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर काउंट कितना हो, n हो, तो वो स्लीप में जाएगा। वो आइटम इंसर्ट करता जाएगा, काउंट में एक इंक्रीज करता जाएगा। अगर काउंट 1 रह गया है तो कंज्यूमर क्या करेगा? उसको वेकअप करेगा, right? The same code it is written here. So this is a solution we have discussed for producer consumer problem by using sleep and wake up. In your question paper, it will be asked the solution for producer consumer problem by using sleep and wake up calls, by using semaphores, by using message passing, by using monitors. So you have to read carefully कि आपको प्रोड्यूसर कंज्यूमर का सोल्यूशन जो है वो कौन से अप्रोच के साथ पूछा गया है। We are having many solution of this problem, right? So we have first solution, that is by using sleep and wake up calls. स्लीप और वेकअप कॉल का यूज करके हम इसका ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। दिस इज अगेन नॉट एन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। व्हाई इज इट सो? सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, अब ये एप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एनीबडी दिमाग चलाओ, सो नहीं। यस, यस गर्ल्स, ओके। सिनेरियो, रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे कॉल्स यूज कर रहे हैं, स्लीप और वेकअप, ठीक है। स्लीप कॉल जनरेट करता है प्रोड्यूसर खुद से, कंज्यूमर खुद से, और वेकअप कॉल कौन जनरेट करता है? कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए। मींस देयर इज अ मैसेज पासिंग, कम्युनिकेशन हो रही है दोनों में। अब फॉर एग्जांपल मुझे मुझे कोई मैसेज पास करना है, मैंने आप में से किसी को बोला कि कृपाली को मैसेज पास कर देना कि कल इतने बजे क्लास है, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से मैसेज पास कर दिया, इन बिटवीन द मीडिएटर फॉरवर्ड टू इन्फॉर्म हर कि कल क्लास है, फिर किसी वजह से वो भूल जाता है, ठीक है। एनी ऑफ द पर्सन उसने कृपाली को मैसेज पास नहीं किया, कृपाली को तो नहीं पता चला कल क्लास है, तो वो ऑब्वियसली क्लास में नहीं आएगी, बट मेरे एंड से काम हो चुका है। This is a communication gap, or in between message has been lost in between. The same thing happens here. When a consumer will generate a wake up call, in between if the call will be
सारे आइटम कंज्यूम कर जाता है तो प्रोड्यूसर को वेकअप करेगा, तो प्रोड्यूसर को उसने वेकअप कॉल जो जनरेट की वो प्रोड्यूसर तक पहुंची ही नहीं, इन बिटवीन इट हैज बीन लॉस्ट समवेयर बिकॉज़ इट इज अ कॉल इन द सिस्टम, इट विल बी लॉस्ट समवेयर। शायद हो सकता है उस टाइम पे प्रोड्यूसर कहीं और काम कर रहा हो या फिर प्रोड्यूसर प्रिंट हो चुका हो किसी और प्रोसेस के लिए, तो वो कॉल उसको नहीं मिली, तो वो जो कॉल थी वो इन बिटवीन लॉस्ट हो गई है, तो उसके प्रोड्यूसर को वो कॉल नहीं मिली तो प्रोड्यूसर काम करना शुरू नहीं करेगा, राइट। और कंज्यूमर ने अपना काम खत्म कर दिया और वो स्लीप मोड में चला जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसने वेकअप कॉल जनरेट की और स्लीप हो गया, अब प्रोड्यूसर को वो वेकअप कॉल मिली ही नहीं तो वो अपना काम करना शुरू ही नहीं करेगा, तो मतलब प्रोड्यूसर भी स्लीप मोड में है और कंज्यूमर भी स्लीप मोड में है, तो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। So in that case, this is a problem occur when we are using sleep and wake up calls in the system. If the call has been lost in between, both of the processes will sleep forever and nobody is working right now. Right? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही एक टाइम पे काम करना शुरू कर दें, तब क्रिटिकल सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। So this is a problem we face when we are using sleep and wake up calls. When the consumer send a wake up call to the producer and it will not received by producer somehow, it has been lost in between, the producer will not wake up and not starting its working, right? So the producer and consumer will both go to the sleep forever. देखिए अब प्रोड्यूसर काम नहीं करेगा तो कंज्यूमर को कौन मेकअप करेगा, कोई भी नहीं, तो दोनों क्या है स्लीप मोड में चले जाते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन दिस सॉल्यूशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन वी आर हैविंग, राइट। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन वी आर हैविंग फॉर दिस सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स? वी आर हैविंग अ सॉल्यूशन दैट इज सीमाफोर। अब ये नया सा कुछ कॉन्सेप्ट है, अलग सा नाम है, कभी नहीं सुना जिंदगी में, क्या है सीमाफोर? Basically, this is the solution we are having, we are using nowadays. हम अपने सिस्टम में आज भी यही सॉल्यूशन ही वर्क करते हैं, और ये सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन की नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब पहले ही लाइन में लिखा है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीजर वेरिएबल। पहली बार वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज अ वेरिएबल? You have heard this term in your programming language. What is a variable here? Memory store. Okay. Anybody else? Variable, constant variables ये keywords हम use करते हैं ना, हाँ क्या होते हैं? Constant और variables हम programming language में use करते हैं, constant जिनकी value same रहती है और variables जिनकी value vary करती है, that are called variables in the programming language, right? Now integer, what are the integer variables? Integers, what are integers? Discrete numbers, either it is positive either it is negative, that is 1 2 3, that should not be a floating number or real number, जैसे कि 1.2 2.3 नहीं हो सकता, it would be always a positive number and negative number and it should be discrete, जैसे कि 1 है 2 3 4 -1 -2 and so on. So it is a special integer variable. Integer variable तो समझ में आ जाता है, अब स्पेशलिटी क्या है? If I will say it is integer variable, तो अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो कुछ तो अलग होगा कि मैंने इसे सीमाफोर बोला, नहीं तो अब तक मेरे पास इंटीजर वेरिएबल्स तो बहुत सारे थे, मैं उनको भी यूज कर पा रही थी, तो सीमाफोर इनसे कैसे डिफरेंट है? अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज अ स्पेशल इंटीजर वेरिएबल, तो डेफिनेटली इट इज अ इंटीजर वेरिएबल, वी आर गोइंग टू यूज एनी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू यूज आई वेरिएबल एंड इट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। इतना तो पता है कि कोई भी वेरिएबल मैं यूज करूंगी वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, राइट। Now what is speciality over here? Once I initialize that variable, I cannot access that variable without wait and signal. Initialize करने के बाद, सीमाफोर को इनिशियलाइज करने के बाद मैं उसको वेट और सिग्नल से ही एक्सेस कर सकती हूँ, अदर देन दैट आई कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल। What I am saying here is, listen carefully. सीमाफोर को इनिशियलाइज, अब इनिशियलाइजेशन क्या होती है? What is initialization? When I write in the programming language integer I, it is called declaration, means I declare a variable I of type integer, right? This is declaration. And when I write I equals to 1, it means I initialize the value of I with 1. मैंने I की एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर दी जिसे मैं इनिशियलाइजेशन बोलती, दिस इज द इनिशियल वैल्यू फॉर I वेरिएबल, राइट। तो हम पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं
शुरू से इनिशियलाइज करते हैं. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन प्रोग्रामिंग. तो वंस आई इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ सीमाफोर, इनिशियलाइज मतलब अगर मैं सीमाफोर को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दूं, अगर मैंने उसकी वैल्यू 1 दे दी, 2 दे दी, 4 दे दी, उसके बाद मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकती हूँ? अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंज करना है तो आइदर बाय यूजिंग वेट, आइदर बाय यूजिंग सिग्नल. उसके अलावा मैं उसे यूज नहीं कर सकती. Right? What is the speciality? After initializing the semaphore, you can only access the semaphore either by using wait operation, either by using signal operation. Right? So what is the semaphore? Is it clear? Okay. तो अब ये दोनों ऑपरेशंस क्या है और इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं सीमाफोर्स पे? इसे हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं और इसे हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, अगर मैं मान लो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया. If I used a variable here s, ठीक है, ये नाम है, कोई भी नाम दे सकती हूँ, एक्स वाई जेड आई एस ओ वट एवर आई वॉन्ट टू गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल. दिस इज ओनली द नेम ऑफ द वेरिएबल आई हैड गिवन. It is s because it is a semaphore. I have used s. S equals to 1. I initialize the value. For this variable, I initialize the value that is 1. ठीक है. अब मैं इसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, तो पॉइंट क्या था, स्पेशल पॉइंट, कि मैं इसको सिर्फ वेट से एक्सेस कर सकती हूँ या सिग्नल से. अदर देन दैट ना तो मैं इसकी वैल्यू को कुछ चेंज नहीं कर सकती. अब वेट ऑपरेशन क्या है? इट इज अ डाउन ऑपरेशन. मतलब ये क्या करता है, आपकी वेरिएबल की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करता है और सिग्नल क्या करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करता है. सिग्नल जो ऑपरेशन है उसका क्या काम है, आपके वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीज करना, और वेट का काम है आपके वेरिएबल की वैल्यू को एक डिक्रीज करना. दिस इज टू ऑपरेशंस वी आर यूजिंग. राइट. अब इसको सीमाफोर को मैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है ये? हमारे पास बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है, एंट्री सेक्शन. राइट. एंट्री पे हम बेसिकली ट्रैप जनरेट करते हैं कि जहां पर कंडीशन चेक हो कि आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हो या नहीं. फिर हमारे पास होता है क्रिटिकल सेक्शन, और फिर होता है हमारे पास एग्जिट सेक्शन. और एग्जिट सेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमने एंट्री पे चेक किया उसकी वैल्यू को चेंज करना है तो हम एग्जिट पे करते हैं, ताकि वो क्रिटिकल सेक्शन यूज करे और एग्जिट पे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके चला जाए. राइट. तो इस जो वेट और सिग्नल ऑपरेशंस है, हम वो उनको कहाँ यूज करेंगे? हम वेट एंट्री पे यूज करेंगे वेट ऑपरेशन को, और एग्जिट पे यूज करेंगे सिग्नल ऑपरेशन को. अब ये ऑपरेशन हमने यहाँ क्यों यूज किया, उसके लिए उसकी बॉडी चेक करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये ऑपरेशन एक्चुअली कर क्या रहे हैं. मैंने क्या बोला, आपका जो सिग्नल ऑपरेशन है, जो मतलब आपका अप ऑपरेशन है, वो आपकी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू में एक एडिशन परफॉर्म करता है, इंक्रीमेंट करता है. तो यू कैन सी द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन. वी आर हैविंग दिस इनबिल्ट फंक्शंस, वेट एंड सिग्नल. इनबिल्ट फंक्शंस मुझे बने हुए हैं. मैं सिर्फ वेट यूज करती हूँ और सिग्नल फंक्शन यूज करती हूँ जहां पे भी मुझे कॉल करने होते हैं. तो उसकी बॉडी देखो यहाँ पर. सिग्नल की बॉडी में सिंपली एक ही स्टेटमेंट लिखी है, एस इक्वल्स टू एस प्लस वन. मतलब जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पर पास करूंगी एज अ पैरामीटर, वो उसकी वैल्यू में एक प्लस कर देगा. सिंपल. सिग्नल सिग्नल क्या करेगा, जो भी पैरामीटर मैं एज इन पास करूंगी उसमें क्या करेगा, एक इंक्रीज करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा. तो सिग्नल क्या कर रहा है, एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इतना काम. चलिए, वेट क्या कर रहा है यहाँ पर? You can see the body of weight. We are having one condition over here, that is while loop with termination at the end. When we know that is their termination, मतलब सेमीकोलन एंड में होने का क्या मतलब है कि मैं मेरी लूप की बॉडी नहीं है. अभी तक हमने जितने भी सॉल्यूशंस पढ़े हैं उसका क्या मतलब है, वी आर हैविंग अ कंडीशन but we do not having a body of that loop. If the condition is true, again you will check the condition. If the condition is false, we'll exit from the loop. This is what we have discussed till now. मतलब अगर ये कंडीशन false होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. रिमेंबर, दिस स्टेटमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लूप. राइट. तो अगर ये कंडीशन false हुई तब मेरा वेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका जो प्रोसेस है वो इसी लूप में रह जाएगा और आगे मूव नहीं कर पाएगा. राइट. तो अभी देखो ये कैसे काम करते हैं. मैंने यहाँ लिखा प्रोसेस के लिए वेट ऑफ एस, क्रिटिकल सेक्शन,
signal of S, right? Now I am having a multiple processes P1, P2, P3 and so on. Semaphore is a solution for n number of processes. Peterson is a solution for 2 processes only, right? तो मैंने क्या किया, मैंने S की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से. अब एक चीज और आप पूछो यहाँ पर कि हम S की वैल्यू 1 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं. I mentioned here to solving the problem of critical sections, we always initialize the value of semaphore by 1 only. जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप सीमाफोर की वैल्यू को हमेशा 1 से इनिशियलाइज करोगे, राइट? तो जब भी मैं क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. तो मैंने यहाँ पर एक सीमाफोर लिया जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है. मैं इसे सीमाफोर क्यों बोल रही हूँ कि मैं इसको सिर्फ वेट और सिग्नल से एक्सेस कर सकती हूँ और किसी से एक्सेस नहीं कर सकती, राइट? तो नाउ मैंने प्रोसेस P1 वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. I use a wait operation on the entry part. मैंने एंट्री पे वेट क्यों रखा, ताकि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं एंटर कर पाए. हम जो वेट ऑपरेशन है वो एंट्री पे यूज कर रहे हैं ताकि कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो वो ट्रैप में कहाँ रहे, एंट्री पे ही रहे, क्रिटिकल सेक्शन में ना आए. और सिग्नल में क्यों, सिग्नल एग्जिट पे, ताकि वो जब क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर ले तो वो उसकी वैल्यू फिर से वही इनिशियलाइज कर दे जो पहले थी, राइट? तो हमने क्या किया, P1 wants to access the critical section. Now P1 wants to access, it will perform the wait operation. What I'm saying here is P1 wants to access, P1 will perform the wait operation. Wait operation perform करने का क्या मतलब है, initial value for S is 1. So the loop will start from here. 1 is less than equals to 0. That condition is true or false? Is that condition is true or false? Condition holds false, it means I will go out of this loop and I will decrease the value of the semaphore by 1. That will become 0, right? तो जैसे आपने wait operation perform किया, you can enter into the critical section, means P1 can enter into the critical section, right? Now when P1 exit from the critical section, it will perform the signal operation. What it means, we will pass the value 0 here, 0 plus 1, it will become 1. So the value of the semaphore again will become 1 when the P1 exit from the critical section. तो आपकी semaphore की value फिर से क्या हो गई, 1. Now any of the process, for example now P4 wants to access the critical section. तो P4 क्या करेगा, wait operation perform करेगा semaphore पे, तो 1 है तो 0 हो जाएगा. P4 critical section में enter कर जाएगा. अब जब P4 critical section में है तो देखते हैं कि कोई और आ सकता है. मान लेते हैं P2 को एक्सेस करना है, तो P2 एंटर करना चाहेगा तो पहले क्या करेगा, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन मेरी सीमाफोर की वैल्यू क्या है, 0. तो लेट अस चेक द कंडीशन, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इट होल्ड्स ट्रू, इट विल स्टे इनटू दिस लूप. मींस आपका जो P2 है वो इसी जगह स्टे करेगा, एंटर नहीं कर पाएगा जब तक P4 अंदर है. तो P4 जैसे ही एग्जिट करेगा यहाँ से, वो सिग्नल ऑफ एस परफॉर्म करेगा, मींस वैल्यू 0 से 1 करेगा, तब P2 एंटर कर सकता है. मींस फर्स्ट क्राइटेरिया वी कैन अचीव हियर, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट? अदर देन दैट, इफ यू टॉक अबाउट द प्रोग्रेस, कि जो प्रोसेस आना चाहता वही आ पाए. अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक वेरिएबल है दैट इज सीमाफोर. अब जो भी प्रोसेस अंदर आना चाहता है उस वेरिएबल पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करके अंदर आ सकता है. अगर कोई और है तो उसे वेट करना पड़ेगा, वो अंदर नहीं आ सकता है. तो प्रोग्रेस कैन बी अटेन. हम जबरदस्ती तो किसी को भी नहीं भेज रहे हैं, जो भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है वही प्रोसेस एंटर कर पाएगा. Other than that, nobody is performing wait operation and nobody is entered into the critical section, right? So you can see semaphore is a solution here which achieved 2 of the criteria, that is mutual exclusion and progress. These are the mandatory criteria. अब थर्ड जो क्राइटेरिया था क्या था, ऑप्शनल वन, बाउंडेड वेट, कि किस प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ेगा. कैन आई टेल हियर कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर वेट करे अकॉर्डिंग टू यू? क्या बता सकते हो कि किस प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ेगा कि उसे क्रिटिकल सेक्शन मिल जाए? एनीवन? आंसर है इज नो. व्हाई? क्योंकि अगर मान लो P1 आ जाता है और फिर से P1 को चाहिए और P1 फिर से आ जाता है, तो मैं नहीं बता सकती ना कि P2 को कितनी देर वेट करना पड़ेगा. इट इज अ रैंडम डिसीजन.
whosoever will get the charge from operating system can access the critical section. I cannot say that कि P1 को इतने chances के बाद चांस मिलेगा ही मिलेगा या P2 को चांस मिलेगा ही मिलेगा. जो भी आना चाहता है रेडी क्यू में रेडी है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडमली किस प्रोसेस को चार्ज देता है. We cannot say that, right? So bounded weight is the optional criteria. We cannot say that about bounded weight here. That is fine. So semaphore is a solution for critical section problem. Is it clear with you? What is a semaphore? How it is used to solve the critical section problems? Okay. तो बेसिकली आपका जो सीमाफोर है वो सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के लिए नहीं. तो गाइस व्हाट आई एम सेइंग हियर इज योर सीमाफोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल आल्सो कम इन योर गेट एग्जामिनेशन. आपके गेट एग्जामिनेशन में सीमाफोर पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग के होते हैं. तो सीमाफोर्स पे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं. तो व्हेन आई सेड द first usage of semaphore is to solving a critical section problem that we have discussed, and here we mentioned the initial value always be 1. अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीमाफोर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी ऑलवेज 1, राइट? क्योंकि अगर 1 नहीं होगी और 0 होगी तो वेट ऑपरेशन कभी भी परफॉर्म नहीं हो पाएगा, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा. समझ रहे हो ना? क्योंकि वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो अगर वैल्यू 0 ही रही तो कोई एंट्री नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं. That's why we initialize the value always with 1. That is the first usage we have discussed. Second one, we are having another usage that is deciding the order of execution. अब ये एक नया पॉइंट है कि आपके सिस्टम में प्रोसेसेस का ऑर्डर कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट हो तो सीमाफोर कैसे डिसाइड कर सकता है. इसके लिए तो हमने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा है. हमने क्या पढ़ा है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा वो तो एल्गोरिथम बताता है. फिर ये कैसे आ गया पिक्चर में? ओके, मेरे पास 3 प्रोसेस है P1, P2 और P3. अगर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करती हूँ तो अगर P1 का अराइवल टाइम 0, 1 और 2 है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विच विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? P1, देन P2, देन P3. तो आपके एल्गोरिथम्स का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके सीपीयू पे इन प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन मोड एग्जीक्यूट करे. अब अगर मैं ये बोलूं कि P0 से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल कैलकुलेट द रेडियस, P2 will calculate the area and P3 will calculate the cost of that area. So means there is a dependency in the code. अगर मुझे P2 का रिजल्ट चाहिए, मतलब अगर एरिया चाहिए तो पहले मुझे रेडियस चाहिए, और अगर मुझे पर एरिया कोस्ट चाहिए तो मुझे पहले एरिया चाहिए. तो मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है कि पहले P1 एग्जीक्यूट हो, फिर P2 एग्जीक्यूट हो, फिर P3 एग्जीक्यूट हो. तो अगर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अगर ये चेंज कर दूं, इफ द ऑर्डर विल बी 0, 1 और 2 तो पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा. मतलब आपके एल्गोरिथम सिर्फ इतना देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस कब आ रहा है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे. दे विल नॉट हैविंग एनी बॉदरेशन अबाउट द लॉजिक और द कोड और द डिपेंडेंसी बिटवीन द कोड इन सिंपल टर्म्स. तो मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रखना है. आई हैड रिटन हियर I want the order of execution for the processes will be P2, P1 and P3. I want P2 will be executed then P1 then P3. मतलब P2 पहले आपका रेडियस कैलकुलेट करके देगा, P1 आपका एरिया कैलकुलेट करके देगा, P3 आपका कॉस्ट कैलकुलेट करके देगा. तो मतलब पहले P2 ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर P1, फिर P3. भले अराइवल टाइम कुछ भी हो किसी भी प्रोसेस का, लेकिन अगर ये है कि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट है वो गलत होगा. अभी मेरा जो लास्ट जो प्रोसेस है P3 अगर मैं उसके कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तब तक मुझे एरिया नहीं मिलेगा और P3 को मैंने पहले एग्जीक्यूट कर दिया, the results will not correct, right? So I have to maintain the execution order as well. उसमें मुझे कौन हेल्प करता है? अगेन सीमाफोर. हाउ इट विल हेल्प यू? अब देखो इस वाले को यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P3. What will be the execution order I want? कि पहले P2 एग्जीक्यूट हो चाहे कोई भी प्रोसेस पहले आए. तो P2 से पहले मैं किसी भी प्रोसेस पे सिर्फ P2 पे मैं वेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं इन दोनों प्रोसेसेस पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. मतलब अगर जब पहले जो P2 प्रोसेस है अगर मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है तो इन दोनों को वेट करना ही पड़ेगा एनी हाउ.
मतलब P2 के पास कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं P1 और P3 को पहले एग्जीक्यूट कर दूंगी तो मेरे आंसर्स रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ऑर्डर क्या चाहिए, P2 P1 फिर P3, मतलब पहला कौन सा एग्जीक्यूशन चाहिए, P2। तो मैंने क्या किया, बाकी दोनों प्रोसेसेस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, वेट। वेट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि जब तक उसे कहीं से सिग्नल नहीं मिलेगा वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, राइट। मैंने यहाँ पर एक सीमाफोर यूज किया S1 which is having a value 0. Make sure this is not a critical section problem, right? That's why I initialize the value with 0. तो 0 है, इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी आपका जो प्रोसेस है वो वेट करेगा, अदरवाइज तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, P1 तब तक वेट करे जब तक S1 की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। तो S1 की वैल्यू 1 कौन करेगा, P2, की P2 के बाद मैं P1 को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर P2 के बाद सिग्नल ऑफ S1 परफॉर्म किया। देयर वुड बी S1। मैंने क्या किया, P2 के बाद सिग्नल ऑफ S1 परफॉर्म किया, उसके बाद आपका जो P1 है उसको चांस मिलेगा। अगर आपका P1 यहाँ पर, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम P1 को शेड्यूल करता भी है तो S1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा जब तक वो P2 को एग्जीक्यूट नहीं करता। जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिग्नल ऑफ S1 नहीं होगा, तो वैल्यू 1 नहीं होगी और P1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो आई मेक दैट कॉम्बिनेशन हियर, वेट ऑफ सिग्नल। P1 will wait till it will get the signal from P2, and P3 will wait, it will get the signal from P1। क्योंकि P3 क्या किसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, P1 के बाद। अब आप एक चीज और देखो, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि मैम यहाँ पर अगर मैं सिग्नल ऑफ S2 परफॉर्म कर दूं, मैंने एक और सीमाफोर लिया S2 जिसकी वैल्यू 0 है, ताकि ये भी वेट करे, राइट। P3 और P1 दोनों वेट करेंगे ना। अगर आप यहाँ पर एक चीज बोलो कि पहली बात तो ये कि मैंने दो सीमाफोर क्यों लिए, और दूसरी बात ये कि मैं दोनों सीमाफोर की वैल्यू यहीं पर सिग्नल कर दूं। अगर मैं यहाँ पर एक सीमाफोर लेती हूँ S1 और मैं यहाँ पर S1 से वेट कराती, यहाँ पर भी S1 से वेट कराती, तो जैसे ही सिग्नल करता तो दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है। I'm saying here is when this P2 will execute and it will make the signal value for S1, तो S1 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो जब X1 की वैल्यू 1 हुई तो P1 भी वेट कर रहा था, P3 भी वेट कर रहा था। इसमें आई विल मेक हियर 1 S1, मतलब एक ही सीमा पर मैं यूज करूँ। तो अगर मैं S1 लगाती हूँ तो यहाँ पर P3 भी एग्जीक्यूट हो पाता है, यहाँ पे P1 भी हो पाएगा। तो अगर मान लो अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरा जो ये एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो फिर से खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दो सीमाफोर यूज करूंगी। तो इसका चार्ज मैंने किसको दिया, P1 को, राइट। तो P1 क्या करेगा, दूसरे सीमाफोर को सिग्नल देगा, तभी P3 आपका एग्जीक्यूट हो पाएगा। But I have used here, is it clear how I am deciding the order of execution? अब दूसरी चीज, एक चीज और मैंने यहाँ बोली, अगर मैं यहाँ पर दोनों सिग्नल कर दूं, मतलब मैंने यहाँ पर सिग्नल S1 को भी दे दिया, S2 को भी दे दिया, मतलब S1 की वैल्यू भी 1 हो गई, S2 की भी वैल्यू भी 1 हो गई। तो अगर इन दोनों की वैल्यू सेम टाइम पे 1 हो जाती है तब भी ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पर वेट ऑफ S2 क्या है, 1 है, तो वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, 1 से 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो वेट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, 1 से 0 हो जाएगा और P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी परफॉर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को ही सिग्नल दिया, किसको, P1 को, क्योंकि मुझे P2 के बाद किसको एग्जीक्यूट करना है, P1 को, और P1 के बाद किसको एग्जीक्यूट करना है, P3 को। तो मैंने वही किया है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एग्जीक्यूशन आपको दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में तीनों प्रोसेसेस आते हैं, और मान लेते हैं कि पहले चांस मिलता है P1 को, पहले चांस मिला P1 को, S1 की वैल्यू क्या है, 0, S2 की भी वैल्यू क्या है, 0 इनिशियली, राइट। तो वेट ऑफ S1 परफॉर्म होगा, तो S1 क्या है, ऑलरेडी 0, तो क्या ये एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर P2 का चांस मिलता है तो मतलब कुछ टाइम स्पेन के बाद चांस किसी दूसरे प्रोसेस को मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं P3 को चांस मिलता है तो वेट ऑफ S2 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो P3 भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अनटिल अनलेस P2 एग्जीक्यूट नहीं होता ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, P2 के बाद मुझे किसको चांस देना है, P1 को, इसलिए मैंने यहाँ पर सिग्नल किसको दिया, दैट इज 1 हियर, P1 प्रोसेस के सीमाफोर को, राइट। जो सीमाफोर मैंने P1 के लिए यूज किया उसको मैं सिग्नल कर रही हूँ।
अगर मैं इसको सिग्नल कर दूंगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर ये हो जाए P2, P3, P1, तो क्या होगा सोल्यूशन? यस, टेल मी द सोल्यूशन, ओपन योर नोटबुक्स। अगर मेरा एग्जीक्यूशन ऑर्डर है P2, P3 एंड P1, व्हाट विल बी द सोल्यूशन? जल्दी बताइए। If I am having this execution order P2, P3 and P1, what will be the solution? ऐसे ही तरह के क्वेश्चन आपकी गेट में आते हैं। आपका एग्जीक्यूशन ऑर्डर डिसाइड करना होता है, बताना होता है कितने वेट सिग्नल आप कैसे परफॉर्म करोगे। डाउट है कुछ? क्या हुआ? आपने बताया इनविटेशन होंगी हमने तुम्हारा वेरी गुड yes, have you found the solution? Yes guys, attend your roll calls. सोल्यूशन सॉल्व करो, तब तक मैं पूछूंगी लास्ट में, इतने अटेंडेंस बोलो। महक, उनसे भी पूछूंगी। प्रेजेंट मैम। कोई बात नहीं। प्रेजेंट मैम। महक, वृंदा, प्रेजेंट मैम। सॉल्व करो तीनों। तुम्हें अलग से बताऊं सॉल्व करो? यूजर, Yes, ma'am. the guys who are attending the online session, attend your roll calls please. Vishwa, Ma'am, Vasu, 17. 17. Hemang. Ma'am, Hemang. Dhruv, Ma'am. Yes, ma'am. Vishwa, Meera, 16. इसी टू ही है ना, यही Yes, नाम ma'am. है ना? 16. विधि, 12 मैम। रिज, आदित्य, Yes, ma'am. वत्सल, Yes, ma'am. ईशान, यस मैम। मंथन। काम नहीं करोगे ना, जाने नहीं दूंगी, बता रही हूँ। कोई बात नहीं, पूरा तुम 6 बजे बैठना चाहिए। जिनल, Yes, ma'am. भले ही ना जाती हो, आई डोंट केयर। वासु, Yes, ma'am. प्रेजेंट मैम। फैज, Present, अनस, ma'am. रूपाली, अंजन, Present, ma'am. रमेश, Present, ma'am. सुचि, कनन, Yes, ma'am. मिताली, जय, Yes, Yes, ma'am. ma'am. भावी, भौतिक, Yes, ma'am. राज, दर्शिल, Yes, ma'am.
पूजन तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही हैं, हो गया तुम्हारा? पेनी, जय, एलविश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिया, हर्षिल, संजय, राज, Present, ma'am. Yes, ma'am. गौरव, Raj. Present. तुम तो राज की प्रेजेंट लगवा रहे हो। अवनी, पूजन, कार्तिका, Yes, ma'am. निसर्गी, हिमाली, Yes, ma'am. यश, केविन, Present, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 121, Yes, ma'am. कुंज, देवन, नेहिल, Yes, ma'am. जय, राहुल, ऋषभ, Yes, ma'am. सदाशिव, Yes, प्रीति, ma'am. शिबू, शिल्पी, Yes, ma'am. सोनाक्षी, सुनीता, Yes, ma'am. विपुल, Yes, ma'am. देवर्ष, Shilpi. ओम, मिहिर, मानसी, निशिता, Yes, ma'am. शुभम, हो गया तुम्हारा? शुभम, हो गया है? क्या कर रहे हो इतनी देर? कितनी देर लगेगी करने में? जल्दी करो। पारस, Yes, ma'am. समीर, सुनीता, Yes, ma'am. समीर, सुनीता, Yes, ma'am. दिव्या, पार्थ, Yes, हारिका, ma'am. सावन, आस्था, सावन कौन है? आस्था, निर्जर, विराज, निशा, शिखा, जय,